Welcome everyone for another show of Saptarishis Astrology YouTube channel. And today's topic is extremely rare and most people are not even aware of this subject. Some are aware. You can say hardly there are few practitioners of this very vital part of astrology, and it is a topic that needs a lot of research. It is a topic that is ideally a topic of Vastu for the Vastu Paddhati, and this is Astro Vastu. Incidentally, very few people have written about it in some articles for this. As we go in today's session, you will realize that this is a virgin area which requires a lot of research, a lot of statistical research, and especially we want the Vastu Pandits of today to learn Astro Vastu and take it ahead. I'll tell you the scenario in detail. This is going to be a long thing. Most people who are into Vastu, okay, they do not land up studying astrology. Vastu, you can learn the basics and slightly decent level by doing a year course or 2-year course or 3-year course, whatever, and reading 10 books, 20 books, and you can start practicing. But when it comes to astrology, okay, it takes a huge amount of time. So very few people who are doing Vastu really get down to learning astrology. A, because Vastu pays you really well in terms of professional this thing, and B, astrology doesn't pay you that much. But is there a correlation between astrology and Vastu? If somebody is living in a house and he is enjoying good fortune, but somebody else comes and lives in that same house and his fortune starts going down, so is it not dependent on one's horoscope? To answer all these questions, we're going to have a scholar who's come before in our channel. He's going to be answering in Hindi, and I will try my level best to translate it into English. Please welcome Sunil Ghasias ji. Thank you once again for coming on our show. After a long time, we both are meeting. Yeah. So, Ghasias ji, what is this Astro Vastu? अभी ऐसे सोचो कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि फ्रॉम जन्म से लेके मृत्यु तक सभी घटनाएं जो घटती है वो मेरे कुंडली के हिसाब से घटती है. अगर वैसे हो रही है तो मेरा घर भी मेरे कुंडली के हिसाब से ही होना चाहिए. और जैसे कि अभी आपने इंट्रोड्यूस किया, ये मेरे कभी इसमें ये ख्याल में कैसे आया ये मैं बताता हूँ आपको. कि जैसे कि नॉर्मली हम लोग कोई भी शास्त्र सीखते हैं तो पहले खुद को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि या अपने कुंडली को ये करके देखते हैं. तो मेरे इसमें जैसे मैं ये सीख रहा था वास्तुशास्त्र, उसके पहले मैं एस्ट्रोलॉजी मतलब बेसिकली आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, उसके बाद मैं वास्तुशास्त्र डेवलप किया हूँ मैंने. तो कोई भी चीज़ मैं नेचुरली मैं एस्ट्रोलॉजी को ही जोड़ने की कोशिश करूँगा. तो मैंने मेरे घर में देखा, तो मैं जॉइंट फैमिली का आदमी हूँ, तो मेरे ग्रैंडफादर से लेके मेरा सन जो है वहाँ 4 जनरेशन का मैं बताता हूँ. चारों जनरेशन के जो लोग हैं वो उनके सभी के 4th हाउस से जुपिटर जुड़ा हुआ है. तो ये कैसे हुआ? दूसरी बात ऐसी है कि समझो हम लोग तो एक जीन्स के हैं, मेरा ग्रैंडफादर, मेरे फादर, मैं और मेरा लड़का सब एक जीन्स के हैं. लेकिन हमारे घर में जो बाहर के औरतें आई है, मतलब मेरी ग्रैंड माँ है या मेरी मदर है या मेरी वाइफ है या मेरी डॉटर इन लॉ है, इवन टू डायरेक्ट मेरी डॉटर इन लॉ है, उनकी भी होरोस्कोप हम लोग देखेंगे तो वो सभी की होरोस्कोप में 4th हाउस से जुपिटर जुड़ा हुआ है. तो इसमें कुछ तो लिंक होना चाहिए. So you are saying that you have lived in this house for so many years. Okay, 4 generations have lived in this Yes. house. And because you have been Not in this house, this is in my home. Yeah. So, and because what sir is telling, Ghasias sir is telling is that 4 generations have lived in this house. Grandfather, father, himself, his own child. Okay. And because he started with astrology,
So he started linking and he found a common thread that Jupiter somehow is aspecting 4th house or conjunct the 4th house. Yes. Okay. In all the horoscopes of all the family members in all the 4 generations. Yes. And even the wife, the daughter-in-law, everybody who's come into this house, even they have the same combination. So what he's telling is there is a common thread of the house and the people, even though there are like 10, 20 people. Yes, I can show you the horoscopes of my family. Okay. और उसका रिजल्ट हमको ये मिला है कि जैसे हम लोगों ने ये किया है कि 4th हाउस से, एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बोला जाता है कि 4th हाउस से अगर जुपिटर लिंक होता है तो तुम्हारा घर या तो मंदिर के बाजू में रहता है या स्कूल के बाजू में रहता है, और घर दिन ब दिन घर आपकी प्रॉस्पेरिटी होती है, प्रोग्रेस होती है, घर बड़ा हो जाता है। तो मैं मेरे चाइल्डहुड का बताता हूँ कि मेरा चाइल्डहुड एक वन रूम में गया है, और जैसे दिन आगे निकलते गए आज मेरे पास जो ये जगह है वो मेरी 4 बेडरूम हॉल किचन की जगह है। Okay. तो वो सबकी, और वैसे ही मेरे लड़के की में भी उसका भी 4th हाउस में जुपिटर है, उसका भी ये अभी ऐसे ही घर उसका बड़ा है, मेरे से भी बड़ा घर है उसका। So okay, let me just recap what you said. Yes. Okay, you said normally people believe that if Jupiter is in the 4th house, okay, then the house where you are staying will be near a school, okay, or near a temple, yeah. okay, you know, or religious institution. Yes. Okay, and at the same time Jupiter is expansive, Yes. so you and progressive, you know, so Jupiter has given them prosperity, and your house has kept on increasing, you know, from 1 room it has become 4 room, you bought more, Yes. you know, you bought more property and all that, and same is the case with your child. अभी और एक उसका नेगेटिव ये मैं बताना चाहता हूँ Okay. कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कहा गया है कि स्थान हानि करी तो जीवाहा, मतलब गुरु जहाँ पे रहता है वो स्थान का अनाश करता है। तो अभी मेरे चाइल्डहुड से देखें तो पहले हमारे घर में 4 जनरेशंस थी, मतलब सो मेनी पीपल्स रहते हैं, कम से कम मेरे हिसाब से 13-14 लोग हम लोग साथ में रहते थे, और जैसे जैसे काल आगे आते गया, अभी आज मेरे घर में सिर्फ 3 ही लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरे फादर, बाकी सब लोग चले गए। मतलब जिसको हम लोग सुख बोलते हैं वो घर का सुख सिर्फ घर बड़ा होने से नहीं होता है, उसमें जो लोग रहते हैं उससे भी सुख जुड़ा होता है। तो ये हो गया है कि अभी कि मेरा लड़का मेरे साथ नहीं रहता, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, बाहर रहता है, वो अगर मेरे साथ रहता था तो मेरा फैमिली पूरा हो जाता था। I will be much happier than आज मैं जितना हूँ उससे कई गुना मैं और ज़्यादा खुश रहता। I presume, I remember a few months back you became a grandfather also. Yeah. Okay. और उसके भी मेरा जो ग्रैंडसन है उसके भी 4th हाउस में जुपिटर है। Oh my God, that's beautiful. That's beautiful. That's beautiful. Okay, let me recap what you said. There's a rule in astrology. I mean, a general saying, you know, is where Jupiter sits, it spoils that house. Okay. So, sir earlier said about the positive things that has happened to him. Yeah. Okay. Yes. And the negative things he says is, although the family, it is a joint family and a very big family, but now everybody has separated, that separative aspect, and even his own son is not staying with him, he is working in Australia and staying over there. Okay, and his own grandson also has Jupiter in the 4th house, which is beautiful. I mean, definitely some punya somewhere, Yes. that, or some karmic कनेक्शन है, उसमें कुछ कनेक्शन है। मैं वही बताना चाहता हूँ कि वो कुछ कनेक्शन है जो हमको सीखना चाहिए। So my question to you is, okay, whether a person will, you know, I'll give you a small example. Okay, I was in Banaras with Jamnadas ji. He's an old man, knows thousands of astrologers in Banaras, rare astrologers, and one of my main contacts used to take me everywhere. I miss him quite a lot, in fact. And we had gone to an rare astrologer. Now Banaras, like any other city, has become a commercial city, and you know the problems of Vastu practitioners. Yes. Everywhere they want to, you know, they have created a bad name for themselves. Which doesn't mean all Vastu practitioners are bad. Okay. So he told, we had gone to meet this rare guy, and he was telling
to Jamnadas ji that you don't need any Vastu at all in your house because your horoscope shows there is no defect. Yes. In your horoscope, Vastu dosh is not seen. Right. So my question to you is, how is there a methodology, simple or easy or maybe complicated? Are there some combinations by which we see कि इस कुंडली में वास्तु दोष होगा कि नहीं, whether this horoscope will have वास्तु दोष or not? Are there some? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ उसके लिए कि ऐसे ये करो, इमेजिन करो कि कन्या, मैं आई कैन गिव यू दैट वो हॉरोस्कोप मैं आपको बता सकता हूँ कि कन्या लग्न की कुंडली है, उसका 8th हाउस लॉर्ड है मार्स, बराबर। वो 8 मतलब वो उसके लिए ठीक नहीं है, तो वो मार्स अगर 4th हाउस में जाके बैठेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तु के हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि ये वास्तु का अग्नि भय है। तो मैं कल्याण में एक जगह गया था। वाई अग्नि भय सर? अग्नि भय इसके लिए कि मार्स जो है वो अग्नि तत्व का है और वो 8th हाउस लॉर्ड है, तो वो जहां भी जाएगा ये डबल मतलब वो डिस्ट्रॉय करता है। वो डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें एक रीजन है कि अग्नि से डिस्ट्रॉय करना। And then it has come in the 4th house of your home. Yes, home. Okay, I'll repeat what you said. Yes. I'm going to ask you the directions later. Yes. Or maybe immediately after those. Is, say for example, he's telling how to see Vastu dosh. He's giving one small example. Okay. Normally in astrology, 8th house is considered bad. Normally. Okay. And for a Kanya Lagna, Mars becomes the 8th lord. Mars is also Karaka of property. Yes, sir. And if it is going and sitting in the 4th house, so then it can create problems. Okay. Because 4th house is the house of your home. Yes. Please तो continue, sir. वही एग्जांपल मैं ये कर रहा था कि ऐसे मेरे पास एक एग्जांपल है कि कन्या लग्न है और 4th हाउस में मार्स है, वो मूल नक्षत्र में है और मूल नक्षत्र का स्वामी जो है वो निरृति करके वो जो राक्षसों का राजा कहा गया है उसको, तो उसको डिस्ट्रॉय ही करना है। तो एक ये ऐसे हुआ है, कल्याण की बात है, नियर बाय सिटी है कि उनके घर पूरा जल गया करके उन्होंने मुझे बुलाया था। तो नेचुरली बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैंने पहले उनकी हॉरोस्कोप मांगी। तो हॉरोस्कोप मांगने के बाद मैंने देखा कि ये मार्स जो है वो 4th हाउस में जाके बैठा हुआ है और जैसे मैंने उनके घर की जो 4th हाउस की जो दिशा है, तो मार्स का जो ये जो है कि मार्स की जो ये कहा गया है कि या अग्नि तत्व का है और वास्तु में जो अग्नि तत्व आता है वो एक तो ईस्ट में आता है और साउथ ईस्ट में आता है। और ये जो अब मार्स है वो जो 4th हाउस, तो वो साउथ ईस्ट का जो साउथ ईस्ट मतलब शुक्र भी उधर का कारक है और मतलब अग्निदेव जो है अग्नि को दिशा दी गई है, तो वो अग्नि जो आके बैठा है कहाँ 4th हाउस में। तो ये जो लेडी थी जहाँ वो रहने वाली थी, उसका मैंने जब पूजा घर देखा घर में कर कि तो वो आग्नेय दिशा में था, तो आग्नेय दिशा की वो उपासना कर रही थी। तो ऐसे कहा गया है वास्तु में कि आप जिस दिशा की उपासना करोगे उस दिशा का जो तत्व है उस तत्व से होने वाला लाभ या नुकसान आपको पहुंचाएगा। तो हमेशा उपासना तो लाभ देनी चाहिए, लेकिन ये उपासना जो कर रही थी वो ऑलरेडी उसके हॉरोस्कोप के लिए वो हार्मफुल थी। तो उसके लिए उसका घर में इतना बेकार शॉर्ट सर्किट हुआ था कि कोई दीवार का रंग समझ में नहीं आया था, इतना पूरा काला हो गया था, पूरा जल गया था शॉर्ट सर्किट से। और ये हॉरोस्कोप मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, I'll repeat it for the audience. Yes. Okay. The first house is which direction, sir? फर्स्ट हाउस जो है हम लोग बोलते हैं कि लग्न वो ईस्ट है, 7th हाउस जो है वो नेचुरली वेस्ट है, 10th हाउस जो है वो साउथ है और उसके अपोजिट में 4th हाउस जो है वो नॉर्थ है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आता है 2nd और 3rd वो नॉर्थ ईस्ट जो है, 5th एंड 6th जो है वो नॉर्थ वेस्ट में आता है, 8th एंड 9th जो है वो आता है साउथ वेस्ट में आता है और 11th एंड 12th हाउस जो है वो आता है साउथ ईस्ट में आता है। Okay. So basically first house is east, 7th house is west, 4th house is north, 10th house is south. And consecutive things, yes, like for example 2nd and 3rd house will be northeast. Yes. Okay, that is the thing. So for that horoscope,
Kanya Lagna horoscope, you said Mars was in the 4th house. Yes. In Moola Nakshatra. Mool Nakshatra, yes. Deity of Moola Nakshatra is Nirutti. Nirutti, yes. Okay. Yes. And she was south. उसके साउथ ईस्ट में क्या था सर? उसके साउथ ईस्ट में मतलब 10th और 11th में, तो 10th और 11th में मतलब जिसको हम लोग आग्नेय दिशा बोलते हैं, तो वहां पे राहु बैठा हुआ है. So her Rahu was in the 11th house. हाँ, 11th house. Okay. So she was having a temple. Temple on the southeast direction. Southeast direction. So she was praying in the southeast. Praying southeast. Rahu. मतलब indirectly Rahu. Yes. And because it is Agni Tattva direction, yes. southeast is Agni Tattva direction. So as they say, you told me that if you pray to the element, that element comes more in your life. Yes, definitely. Either it will benefit or it will this thing. But since over there Rahu was there, it created a problem, and she had short circuit, Moola Nakshatra, all that short circuit, etc. And the whole house was burnt. Yes. So basically the combination of directions, combination of 8th Lord, Karaka, Mars, everything you are combining in your Astro Vastu. Yes. I hope this example is crystal clear, but of course for young ones it might not be so. अब चाहे तो मैं और एक example दूँ. Yes, that's what I was saying. For young ones, maybe if you can give us one more example. एक ऐसे ये मतलब ये क्यों जोड़ना जरूरी है, ये मैं उसके पीछे की मेरी सोच बताता हूँ आपको. कैसे इमेजिन कीजिए कि कोई व्यवसाय है, प्रोफेशन, एक आदमी बहुत ही मेहनत करके उसको पूरा पीक पे लेके आया, उसका ग्राफ पूरा ऐसे है, उसके पीछे वही जो व्यवसाय है उसके लड़के के पास आया, तो मतलब व्यवसाय की जो व्यवसाय वही है, उसका वास्तु भी वही है, लेकिन ऐसे नेसेसरी नहीं है कि जो ग्राफ से वो आदमी चल रहा था वही ग्राफ से वो लड़का भी चलेगा. ऐसे हो सकता है उससे और ज्यादा ग्राफ बढ़ेगा, या फिर ऐसे भी हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे कि वो पूरा डाउनफॉल हो गया. तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ वास्तु आपको रिजल्ट नहीं देगी, वो वास्तु अगर आपसे ट्यून होगी तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, वो आपसे मिसट्यून होगी तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगी. दूसरा एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं. Let me just tell you. Yes, continue. What sir is telling is, a man is there, he is doing business at his office, he is progressing really well. His son comes and sits in the same location with the same vastu, and somehow the business is going down. The reason is personal horoscope tuning with that vastu. Personal horoscope tuning. The man's horoscope would have been matching with that vastu, the son's horoscope would not have been matching with that vastu. और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आप वो एस्ट्रोलॉजी में फेथ करो या नहीं करो, लेकिन हर एक ये तो हम लोग मानेंगे कि जो कर्म हम लोग करते हैं वो कर्म का ही फल हमको मिलने वाला है. तो कर्म हम कहाँ से देखेंगे? कर्म देखने के लिए तो हमको वो चार्ट देखना जरूरी है, एस्ट्रोलॉजी के रेफर करना जरूरी है. और अगर सिर्फ वास्तु ही फल देती होगी, उसमें अगर एस्ट्रोलॉजी का कोई भी रोल नहीं होता होगा, तो फिर ऐसे समझो कि आप अपार्टमेंट में रह रहे, तो फिर ग्राउंड फ्लोर से लेके टॉप फ्लोर तक जो भी रहते हैं उनको सेम फल मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? वैसे नहीं मिलता है, हर एक की मर्जी रहती है. Because these days in buildings, yes, what is the plan at the ground floor? Yes. That apartment, same plan goes at the top till the 7th floor, 10th floor, or 20th floor. Yes. So the vastu will be the same in every. Yes. तो broadly speaking. Yes. तो वास्तु सेम है तो सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं होता है. हर एक के वरीज अलग अलग रहती है, हर एक का हैप्पीनेस अलग अलग रहता है. I have a very broad question to ask you, sir. It's a very broad question. How much percentage of fortune does vastu control in your life? देखिए, सिंपल ये देता हूँ, ब्रॉड, जैसे आपने ब्रॉड पूछा है, मैं ब्रॉडली बताता हूँ कि दिन के 24 घंटे हैं, उसमें से मिनिमम 8 आवर हम लोग वास्तु घर में रहते हैं. सोने का टाइम जो है उस टाइम वो हम लोग वास्तु में रहते हैं, और उससे प्लस और माइनस कोई ज्यादा होगा, प्लस ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम 8 आवर्स तो हम लोग रहते ही है. अगर 24 घंटों में से 1/3 टाइम अगर मैं वास्तु में रहता हूँ, तो ज्यादा टाइम मैं कहाँ स्पेयर करता हूँ? घर में ही स्पेयर करता हूँ कि नहीं? तो रिजल्ट कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा.
Basically we're spending more time at our house in a way, you know, and especially the sleep part. Yes. The sleep part, which is where our body gets Yes, tuned yes. with the Energized, vibrations, yes. vibrations of the place, and Yes, yes. you know, and also energized. Yes. So Vastu is that important. Yes. Can you tell us more examples of Astro Vastu that you have used or seen? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक बड़ा आदमी है, उसकी फ्लोर मिल पुणे बॉम्बे रोड पे एक फ्लोर मिल थी उसकी, और उसके पार्टनरशिप में उसका भाई था। अचानक ऐसे हो गया कि जो, और वो फ्लोर मिल से ब्रिटानिया साठे ऐसे बड़े बड़े इसको वो लोग सप्लाई करते थे, मतलब छोटी नहीं थी वो, काफी बड़ी ह्यूज इंडस्ट्री। तो अचानक ऐसे हो गया कि वो ये बंद हो गई, और उसका रीजन क्या था कि दो जो भाई पार्टनर थे उनमें आपस में टकराव हो गया, उनका नहीं जम रहा था। तो उसमें से एक भाई मेरे पास अप्रोच हुआ था और मुझे लेके गया था कि सर देखेंगे ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग चल रहे थे और ब्रेक आ गया करके। तो जाते जाते मेरे साथ एक स्टूडेंट था मेरा, तो जाते मैंने स्टूडेंट को पूछा कि वहां जाके हम लोगों को कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है। तो उसने कहा सर समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताइए। तो मैंने कहा देखो कि दो भाई में टकराव है करके, तो एस्ट्रोलॉजी में ब्रदर का कारक जो है वो मंगल है, और जहां से हम लोग ये देखते हैं, ब्रदर देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो थर्ड हाउस से देखते हैं। मतलब थर्ड हाउस जहां पे आता है और मंगल जिस दिशा का कारक है उस दिशा में हम लोगों को देखना है। तो मंगल साउथ का कारक है, साउथ में दिग्बली होता है, तो वहां जाके हमको साउथ में कॉन्सेंट्रेट करना है। और थर्ड हाउस जो आता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है, तो नॉर्थ ईस्ट में कॉन्सेंट्रेट करना है। मतलब नॉर्थ ईस्ट और साउथ, ये यहाँ हमको वहाँ का ये मिलना चाहिए कि क्यों बंद हुआ है। So basically, I will repeat the whole story. But so basically, you used basic fundamentals of Karaka and house मेरे हिसाब to से find the direction where there will be problem in the Vastu. Yes. Okay, I'll explain it to everyone. So I've understood what you're saying. एक थोड़ा ब्रेक करता हूँ। मेरे हिसाब से कोई भी शास्त्र में एडवांस नहीं होता है, जो भी एडवांस होता है ना वो फंडामेंटली होता है, कि जो फंडामेंटल्स है वही हम लोग इलैबोरेट करके, या मतलब शास्त्र, और एक थोड़ा इशू डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह करना जरूरी है कि शास्त्र और कला में एक फर्क क्या है, कि शास्त्र है वो हर नियम से बने हुए हैं, हर एक उसके रूल्स है करके वो शास्त्र है, बराबर। अगर सिर्फ रूल से ही शास्त्र, मतलब शास्त्र ही तुम्हारे हमारे काम में आता होगा, तो आप मैं ये जो भी चाहे वो समझो, हम लोग सब संगीत सीखना चाहते हैं, म्यूजिक सीखना चाहते हैं, तो अगर सिर्फ शास्त्र नियम ही हमको सीखने हैं तो आप भी सीख सकते हैं, मैं भी सीखता हूँ, ये सीख सकता हूँ, ये भी सीख सकते हैं, तो हम लोग संगीतज्ञ होते थे। लेकिन वो रूल्स हमारे काम में नहीं आते। हमारे काम में वो आता है कि जो रूल्स को हम लोग कैसे फ्लेक्सिबली ये करते हैं। तो मतलब शास्त्र जब भी कला होता है तो ही हमारे काम में आता है। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अभी इसमें कि टीवी में शो चलते हैं, कि किचन शो चलते हैं, कि शेफ लोग, संजीव कपूर जो है वो बताता है कि ये करना है। अभी कि बहुत से ऐसे किताब है कि उसके ऊपर ये किए गए हैं। राइट। तो वो किताब पढ़ के हर कोई बढ़िया खाना बना सकता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसे समझो कि 4 लेडीज को एक ही किताब दिया और ये किताब से ये आप बनाओ करके बनो, तो उन्होंने वो ये बनाया, तो ऐसे आपको लगता है कि वो हर एक का टेस्ट सेम रहेगा? नहीं रहता है, क्योंकि अलग उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड किया रहता है। मतलब वो जो शास्त्र किताब में पढ़ते हैं वो लोग उसको अपने हिसाब से टर्न करके उसको कला, वो फिर वो बनाने के बाद ही वो हम लोग खा पाते हैं। करेक्ट। नहीं तो फिर सबका सेम होना चाहिए ना, वैसे सेम नहीं होता है। Very true. Now that's a good point you said. Okay, I'll quickly say the point that Sir said first, that there's he had a client somewhere on the Pune-Mumbai expressway who had a huge business, okay, and that huge factory somehow was closed down, and it was due to the reason of a problem created by his brother, fight between 2 brothers on the business. So while he was traveling with his student, so his student said,
okay, we're going to go to this place. Can you predict where the problem will be? So what Sir did is, he used the fundamentals of astrology. He said the problem is because, as told by the client, the problem is because of brother. Brother house is third house. Okay. Karaka for brother is Mars. So third house, the direction will be northeast. 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 Yeah, Okay. northeast. And Mars at the Direction is south. South. Yes. So south gets Digbali. Okay. Yes, Digbali. And so that's the. Gosh, I've forgotten Jyotish. I don't know. I've forgotten the Digbali table also. नहीं उसके मैं 1-2 मिनट ले दूँ तो ये कैसे ध्यान में रखना है वो मैं बताता हूँ. Okay, sure. कि हम लोगों ने सीखा है कि मार्स और जुपिटर वो ईस्ट में दिग्बली है. तो मार्स के पास मर्क्यूरी एंड जुपिटर वो ईस्ट में मर्क्यूरी एंड जुपिटर जो है जिसको हम लोग बुध गुरु बोलते हैं वो ईस्ट में दिग्बली है. ईस्ट में आता है हमारा सर. मर्क्यूरी के पास दिया है मेमोरी और जुपिटर के पास दिया है ज्ञान. वो दोनों हम लोग कहाँ सेव कर सकते हैं? यहीं सेव कर सकते हैं. बराबर. नॉर्थ में आता है. नॉर्थ में जो दिग्बली बताया है वो मून एंड शुक्र, चंद्र और शुक्र, ये दोनों नॉर्थ में दिग्बली बताया गया है. तो नॉर्थ में जो फोर्थ हाउस आता है उसका ये है सुख स्थान हम लोग बोलते हैं. और ये जो चंद्र और शुक्र है जो हम लोग हर रोज एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि बगैर मेरे माँ या बगैर मेरी वाइफ मेरे सुख है ही नहीं. है कि नहीं? तो इसीलिए चंद्र और शुक्र जो जल तत्व के है और जल तत्व के पास सुख दिया हुआ है. तो ये सुख चंद्र और शुक्र जो है वो फोर्थ हाउस में दिग्बली होते हैं. शनि जो दिग्बली होता है वो सेवंथ हाउस में दिग्बली होता है. सेवंथ हाउस कम्युनिकेशन का ये है और कम्युनिकेशन विदाउट वायु तत्व नहीं होता. वायु तत्व के बगैर कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा कोई भी इसमें. और वायु तत्व का कारक है शनि. इसीलिए शनि जो है वो सेवंथ हाउस में दिग्बली हो. और सन एंड मार्स जो है वो 10th हाउस में दिग्बली होते हैं. तो 10th हाउस जो है जिसको हम लोग कर्म बोलते हैं या पावर बोलते हैं. 10th हाउस से हम लोग पावर देखते हैं. और पावर का अग्नि तत्व, तो पावर का कारक कौन है? सन एंड मार्स ये पावर का कारक है. इसलिए सन और रवि और मंगल जो है वो 10th हाउस में दिग्बली होते हैं. मतलब इट्स वेरी सिंपल टू remember. Good, we have learned something. Okay, thank you so much. Okay. See, in the first house you have Jupiter and Mercury. That's the east. That's where your head is there. And basically Mercury gives you the intelligence and Jupiter gives you the wisdom. Yes. Okay, so that's comes right over here. Then let's go to fourth house. Fourth house you have Moon and Venus. Moon and Venus. Okay, so that is fourth house is Sukhasthan. That means happiness. Okay, so happiness you get from your mother and of course also at a later stage from your wife. Okay, then seventh house you have Saturn. Okay, so Saturn, seventh house is your relationships, etc. Communication. Basically communication. How you interact. Yes, interact with the opposite. This thing. So Saturn is the Karaka of that. Yes. Okay. Vayu Tattva. Vayu Tattva. Yes. Okay, because that's why wind. Okay. Then 10th house is saying Sun and Mars both are Agni Tattva. Yes. Both are action oriented planets. Yes. Okay. And 10th house is your karma. So there is where your Sun and Mars have to be Digbali. Yes. Okay. So that's great. Let's come back to that horoscope. Okay. This is how you understand or remember the Digbali table. Let's come back to the horoscope. So before he even saw the horoscope, while he was going on the way, he said Mars, because the problem is created by the brother, so Mars and third house. So third house is northeast, okay, and Mars, it gets Digbali, that means strength, in the south. So he said at that location, these two areas we will inspect, okay, south and northeast, yes. and we will try to see if there is a problem in it or not. So when you went over there, what did you see in these two areas? हाँ, अभी वास्तु के हिसाब से साउथ में स्लोप नहीं होना चाहिए. As per Vastu, in the south there should be no slope. और नॉर्थ ईस्ट में कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. When you say बड़ा construction means what? कोई भी हेवी नहीं होनी चाहिए. नॉर्थ ईस्ट should not be heavy. North east should not be heavy because that's the where the head of Vastu Purush. Yes.
where the head of Vastu, body of Vastu is there. So northeast, no heavy things. Heavy, yeah. Okay. And South में slope नहीं there should be no slope. No slope. Slope is like going down. going down, yes. Alright. तो वहाँ जाके हम लोगों ने देखा कि जो फ्लोर के लिए जो वीट यूज करते हैं तो वो पहले धोते हैं फ्लोर मिल तो वीट तो वो धोते हैं और वो जो सीपे उसका जो सी वाटर है वो पानी वो इंडस्ट्री से बाहर छोड़ा था, वो जो गांव में जा रहा था। तो उन्होंने गांव वालों ने कंप्लेंट की, तो उन्होंने वो रोकने के लिए उन्होंने ये किया, सोचा कि हम लोग क्यों ना हमारे ही प्रीमाइसेस में एक ये करते हैं, खड्डा करते हैं, पीट करते हैं और वो पीट में वो पानी छोड़ते हैं। और वो पीट जो है वहां जाके हम लोगों ने देखा कि वो पीट जो है वो एग्जैक्टली वो वास्तु के साउथ में था, जो कि वास्तु शास्त्र ने उसको प्रोहिबिट किया है। There should be no hole or like big khadda, pit, this thing in the south. Yes. So basically, what were they doing earlier? Because it's a floor mill, they were washing the wheat, yes, in the south. They wash the wheat in the industry, and the water goes out of the industry. Goes out of the industry in the village. So villagers objected to it. So they decided to make a change and create a big well kind of well where the water goes. Yes. जो कि जो कि शास्त्र में प्रोहिबिट किया है, वास्तु शास्त्र में प्रोहिबिट किया है कि साउथ में आपको पीट नहीं होना चाहिए। फिर हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट ऑब्जर्व किया, तो so this was one defect you saw. Yes. That in the south where Mars gets digbali, yes, there was slope, plus there was a big well. Okay. और फिर हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट ये किया कि और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जैसे ये अगर सही आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट भी ये करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में देखा कि नॉर्मली हमारे इसमें ऐसे सोचा जाता है कि तुलसी वृंदावन, हम लोग तुलसी वृंदावन बोलते हैं, तुलसी जहाँ लगाती है वो जो पॉट है वो हम लोग अच्छे समझते हैं। तो वो उन्होंने एक तुलसी वृंदावन कंस्ट्रक्ट किया था नियरली 5 फीट का। But is it not that in northeast where God is there, tulsi to be kept over there is good? I mean, लेकिन उधर ये हेवी नहीं होने चाहिए। उन्होंने एक 5 फीट का तुलसी वृंदावन कंस्ट्रक्ट किया था। So mean they 5 feet plan. 5 feet construction. 5 feet construction. Oh, they put like a brick thing yes. And then they put. So in the northeast, which will be the third house, your brother, they put the tulsi plant, but they constructed a lot of bricks around it and made it 5 feet. Yes. और फिर मैंने उन्होंने पूछा कि ये दोनों जो हुआ है ये right from day one था। So because of the bricks it became heavy. Is that what it is? Yes. Okay. Because of the bricks it became heavy. Okay. तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो बनाया है ये right from day one था या बाद में बनाया? तो उन्होंने ये दिया जवाब कि ये जब भी बंद हुई इंडस्ट्री उसके 1.5 महीना पहले हम लोगों ने ये तुलसी वृंदावन भी खड़ा किया है और ये पीठ भी बनाया है, जो कि मतलब वास्तुशास्त्र में ये प्रोहिबिट किया है, बराबर। लेकिन अगर वो एस्ट्रोलॉजी से आपको लिंक करना है कि ये अगर सिर्फ मैं जगह पे जाके वो ऑब्जर्व करता था तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बराबर है, लेकिन वो जाने से पहले मैं इमेजिन कर रहा था कि उधर प्रॉब्लम्स जो है वो साउथ और नॉर्थ ईस्ट में है। तो वो अगर सही निकला मतलब इसका एस्ट्रोलॉजी, और उसके पीछे मैं रीजनिंग दे रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मुझे लगता है, ऐसे नहीं कहा मैंने, उसके पीछे का जो एस्ट्रोलॉजी का जो रीजन है उसका रीजनिंग मैं दे रहा हूँ। सो देन आई एम सेइंग you found out the flaw in northeast and in south. Yes. And you asked them कि before the industry, before the factory closed down, okay, was this before right from the start, these two things, this well and this plant, or constructed afterwards? So they said before the factory closed down, 1.5 months before they have built it. Yes. So you found that this is what triggered the problem for them to shut down the factory. Exactly. Then what did you do? Did you change? तो मैंने उनसे ये करने के लिए बोला कि एज अ वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट मैंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि ये फिर कहाँ होना चाहिए, तो मैंने उनको पोजीशन